Hello everyone, welcome to this next video in our A to Z series for RBI Grade B. In this series, we are discussing every single aspect of RBI Grade B examination so that you can get all your questions answered at one single place. In the earlier video, we discussed A for all about RBI Grade B. We have divided this into two parts. In the part 1, we discussed about vacancies and eligibility. Now in the part 2, we are going to discuss about pattern and cutoffs. So we are still continuing with A. In the next video, we will start with B for books. And if you want to get access to the full playlist, this is the playlist, right? And you can have the link for this playlist in the description of this video. Why you should watch this video when there are hundreds of videos already over the internet which are telling you the same thing. As I told you, it would be more detailed. You will get all your questions answered in this one single video. आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा. And it will add a lot of value to your knowledge because in this video, not only the pattern and cutoffs, we will also discuss about what is the competition at different stages of your preparation or different stages at which you appear in RBI Grade B examination. What is the medium of language you can choose in phase 1, phase 2 and interview? इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों को ये मुश्किल आती है कि हम इंग्लिश में दें या हिंदी में दें, हिंदी में दे भी सकते हैं या नहीं. Then cutoffs are something which are varying a lot over the years. How to tackle that variation as an aspirant? Interview is very uncertain. What can be the safe score in phase 2 so that the dependency on interview can be minimized? And along with us would be an aspiring RBI Grade B officer just like you. हम इसको कुछ नाम नहीं देंगे, ये आप में से ही एक है, आप ही की तरह एम्बिशियस है, आप ही की तरह इसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं. तो ये हमारे साथ साथ इस वीडियो में क्वेश्चंस पूछते रहेंगे एंड आई विल कीप आंसरिंग दोस क्वेश्चंस सो दैट व्हाटएवर इज रनिंग इन योर माइंड राइट इज आंसर्ड देयर एंड देन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न फर्स्ट, राइट. व्हाट इज द पैटर्न? क्या क्या स्टेजेस हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में? सो वी हैव 3 स्टेजेस. फेज 1, then phase 2, and the third stage you can call phase 3 or you can call it interview, and obviously after that final selection happens. So all of them who will apply will sit in phase 1, then few will get shortlisted for phase 2. Those who will sit in phase 2, few of them will further get shortlisted for interview, and those who will give the interview, few of them, depending upon the number of seats, will get selected in the final merit list. So this is the overall pattern of RBI Grade B in terms of number of stages or number of phases that are there in this examination. Now, very important thing for you to notice that phase 1, which is the first phase, is just qualifying. क्वालिफाइंग का मतलब है कि फेज 1 के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं जोड़े जाते हैं. Phase 1 is qualifying. It will just make you eligible to sit in phase 2. So you will appear in phase 2, and after phase 2, if you get shortlisted for the interview, you will sit for the interview, and marks for both phase 2 and interview will be clubbed together, and out of that the final merit list would be prepared. So phase 2 and interview are those stages where your marks would be counted in the final selection, whereas phase 1 is just qualifying. अभी एस्पायरिंग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हर स्टेज में लोग कम होते जाएंगे बिकॉज एलिमिनेशन हो रहा है. व्हाट इज द आइडिया अबाउट द कंपटीशन एट एवरी स्टेज? कितना कंपटीशन है हर स्टेज पे? सो ये बात तो क्लियर है दैट एज यू गो अप from phase 1, phase 2 interview to final selection, aspirants will keep getting filtered out. Now let's assume a case where we assume that there are 100 seats. Now seats can vary year to year and there are 1 lakh aspirants. I'm just assuming aspirants can also vary. That for 100 seats, around 1 lakh aspirants are giving the phase 1 examination. Now how many will get shortlisted for phase 2? That is, how many will be eligible to sit for phase 2, or how many will clear phase 1 and will be eligible for sit for phase 2? So for every seat for which RBI is recruiting, they will have 10 to 15 people who will be sitting for phase 2. तो यहाँ पे अगर 100 seats हैं, around 1:15 means 1500 people will get shortlisted for phase 2, which means 1 lakh में से 1500 are appearing in phase 2, so it is around 1.5% of the total aspirants. Now all those who will sit for phase 2, अराउंड 300, क्योंकि हर एक सीट जो आरबीआई रिक्रूट कर रही है 1:3 की रेशो में पीपल आर गिवन द इंटरव्यू कॉल. सो फॉर 100 सीट्स दे विल कॉल
300 people for interview. So 300 out of 1 lakh will appear for the interview. So here the ratio is 0.3%. That is only 0.3% people out of 1 lakh are able to reach the interview stage. और final selection 100 seats है तो 100 ही लोगों का होगा. So 100 out of 1 lakh, it means 0.1% people will be able to get their names in the final list. Now these percentages are all based on assumptions के 100 सीट्स हैं, सीट्स 200 भी हो सकती हैं, सीट्स 90 भी हो सकती हैं, एस्पिरेंट्स 1 लाख भी हो सकते हैं, 1.5 लाख भी हो सकते हैं. But this will give you a fair idea. Now aspiring RBI grade B officer has this question in his mind कि सर इसमें तो बहुत कंपटीशन लग रहा है, only 0.1% are able to clear or get his or her name in the final merit list, but ये तो बहुत ज़्यादा है as compared to banking and SSC. तो क्या मैं वही एग्जाम ना दूं? बिल्कुल सही थॉट है, बट आई डिस्कस अबाउट द कंपटीशन इन बैंकिंग एंड एसएससी लेटर इन अ वीडियो. सी फॉर कंपटीशन. तो जब सी की बारी आएगी हम कंपटीशन की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि बाहर से जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन लग रहा है आरबीआई में कि बैंकिंग में बहुत कम होगा या एसएससी में बहुत कम होगा, वहां पे भी कंपटीशन इतना कम नहीं है. वी विल टॉक अबाउट द एग्जैक्ट फिगर्स इन दैट वीडियो सी फॉर कंपटीशन. तो चलिए अब इन तीनों फेजेस का हमें पता लग गया है. लेट्स ट्राई टू डिस्कस द पैटर्न ऑफ ईच फेज हेयर इन मच मोर डिटेल सो दैट यू गेट क्लैरिटी. लेट्स स्टार्ट विथ फेज 1 फर्स्ट. तो फेज 1 का पैटर्न क्या है? फेज 1 का पैटर्न इज प्रिटी सिंपल. देयर इज ओनली वन पेपर इन फेज 1. That one paper has 4 sections. What are those sections? We have general awareness, which is GA or current affairs. We have reasoning, we have English language, and we have quantitative aptitude. Number of questions in each of these sections are GA is 80, reasoning is 60, English is 30, quant is 30. So the total number of questions, if you sum up, would be 200. Each question is of 1 mark. So 80 questions, 80 marks, 60 questions, 60 marks, like that. For 200 questions, you will have 200 marks. And the time that is allotted to this paper is 120 minutes, but this is not composite time. There is a sectional timing. मतलब ऐसा नहीं है कि आप 120 मिनट को अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी सेक्शन में यूज करें, नहीं. दे हैव प्री डिफाइंड that this 120 minutes would be further divided into sectional timings, जिसमें आपको GA, क्वांट और इंग्लिश में 25 मिनट्स ईच मिलेंगे. आप इतना ही टाइम इस सेक्शन को दे सकते हो, दूसरे सेक्शन का टाइम किसी और सेक्शन में नहीं यूज कर सकते हो, और रीजनिंग में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे. सो ये सेक्शनल टाइमिंग है. हालांकि ओवरऑल टाइम 120 मिनट्स है, बट आपको सेक्शनल टाइम ही कंसिडर करना होगा. यू विल हैव टू परफॉर्म in a certain section within that sectional timing. Is there a negative marking? The answer is yes. 1/4 of the marks allotted to the question would be the negative marking. What would be the medium of paper? किस किस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं? Pardon me. आप इसको बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन वुड ओनली बी अवेलेबल इन इंग्लिश. अब इंग्लिश का पेपर हिंदी में नहीं सेट हो सकता है, बट जीए, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड would be available in Hindi also. So this is the overall pattern of phase 1. Now our aspiring RBI grade B officer is of the view कि मजा आ गया सर, ये पैटर्न तो बैंकिंग और एसएससी वाला लग रहा है. आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर देम, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी. ठीक है, देखने में सही लग रहा है, बट आई वुड से वेट वेट वेट. दो दी सब्जेक्ट्स काइंड ऑफ साउंड सिमिलर टू बैंकिंग, what is there in RBI, but it is entirely different. मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है. If I talk about quant and reasoning, most of the times when you are preparing for banking, you would either prepare for clerical level, or even if you're preparing for PO level, you mainly prepare for prelims. काफी लोग मेंस की भी तैयारी करते हैं, बट प्रीलिम्स की तो हर कोई करता है. बट द लेवल दैट यू गेट इन आरबीआई इज नॉट ऑफ प्रीलिम्स. जो पीओ का प्रीलिम्स लेवल है वो बहुत कम है. आरबीआई में जो फेज 1 का लेवल है दैट इज इक्वलेंट टू पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस, और आई वुड से इवन मोर देन दैट. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी नट टू क्रैक. यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड. डू नॉट अंडर एस्टिमेट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. I know many people who score good overall, but they are not able to perform well in quant and reasoning, and therefore they are not able to clear the sectional cutoff. हम sectional cutoff की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे. जर्नल अवेयरनेस की भी बात करूं तो यहाँ पे नाम जीए है,
but this is entirely different from what you get in banking. I'll just give you one simple example. For example, in RBI GA, there would be around 27 marks of current affairs from finance current affairs. And most of this would be related to RBI regulations. Now, these finance current affairs or RBI regulations are not asked that much in your banking papers, neither in UPSC exams, अगर आप UPSC से भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल अलग चीज़ है जो आपको पढ़नी पड़ेगी. Similarly, if I talk about other area, there would be a lot of questions from reports such as Union Budget, Economic Survey, RBI Annual Report, which is around say 12 to 15 marks. Again, this is an area which is not asked that much in banking or UPSC exams. So ये around out of 80, 40, 50 marks paper, तो clearly it is differentiating on the basis of areas of questions that are being asked. तो सबसे बड़ी गलती यही होती है एग्जाम पैटर्न देख के व्हेन पीपल थिंक दैट देयर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग और यूपीएससी वुड बी यूजफुल हेयर. यूपीएससी वालों को तो मैं खासकर ये बोलूंगा कि आपका सी सेट का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग है. द क्वांट एंड रीजनिंग दैट दे आर आस्किंग यू हेयर इज टोटली डिफरेंट, दो बेसिक्स वुड हेल्प यू दैट यू गेन इन यूपीएससी and RBI also. Current affairs that you would have studied for UPSC are entirely on the conceptual level, whereas in RBI they will ask you a lot of questions at the conceptual factual level. मतलब facts based होते हैं, data based. कितने करोड़ का बजट पास हुआ? 2000 करोड़. ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So I think you should delve more into the previous year papers. You will get more clarity on what I'm saying, but this is a warning if you're thinking on these lines कि similarity रहेगी मेरी banking और UPSC preparation में RBI की. एटलीस्ट इन फेज 1 तो मैं आपको वार्न करूंगा कि हाँ शायद बेसिक्स हेल्प कर दें, बट आपको एक डेडिकेटेड प्लान लेना पड़ेगा प्रिपरेशन का, बिकॉज आरबीआई इज अ बिट डिफरेंट. अब थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गए हैं हमारे एस्पायरिंग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर कि सर ये तो थोड़ा शॉकिंग था, मैं तो बड़ा खुश था. बट नाउ कैन यू टेल मी दैट हाउ मेनी मार्क्स आई नीड टू स्कोर टू क्लियर फेज 1? फेज 1 के पेपर में मुझे मार्क्स कितने लेने पड़ेंगे सो दैट आई कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पे सबसे पहले मार्क्स नहीं डिस्कस करते हैं, rather discuss about the parameters which makes you eligible to clear phase 1. So there are two parameters. First one is sectional cutoff, then there is overall cutoff. तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ. लेट्स टेक अ डेटा फ्रॉम द 2019 आरबीआई ग्रेड बी पेपर. दैट ईयर द ओवरऑल कट ऑफ, मतलब जो टोटल स्कोर आपको आउट ऑफ 200 चाहिए था टू क्लियर द फेज 1 वाज 122. सो दिस इज द ओवरऑल कट ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट. Apart from that, they also have a sectional cutoff. Sectional cutoff means that in every section they will define a number and you need to score equal to or greater than this number to clear the sectional cutoff. मतलब जीए में अगर सेक्शनल कट ऑफ 20 थी तो आपको मिनिमम 20 नंबर लाने थे. अगर आपके जीए में 19 रह गए और आपका टोटल फिर भी 125 बन गया, लेकिन आप तब भी क्लियर नहीं करेंगे बिकॉज दो यू हैव क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ, बट आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है जीए में वो नहीं क्लियर हुआ बिकॉज यू स्कोर्ड 19 एंड द सेक्शनल कट ऑफ वाज 20. So like this, whatever the sectional cutoff is defined by them, you would have to clear that sectional cutoff and you would also have to clear the overall cutoff. And please bear in mind that overall cutoff is not equal to sum of marks in GA, English, Quant and Reasoning. अगर आप इन चारों सेक्शनल कटऑफ्स का सम करेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू द ओवरऑल कटऑफ. ओवरऑल कटऑफ इज इवन मच हायर देन दिस सम ऑफ सेक्शनल कटऑफ्स. ये चीज याद रखना, यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं. So this is an example of sectional and overall cutoff. You need to clear both these cutoffs and then you will clear phase 1. So हमारे aspiring officer बोल रहे हैं, sir I got an idea. So I need to score around 120 marks overall and I need to clear these sectional cutoffs in all the sections and I'll clear phase 1. मुझे पता लग गया है मुझे कितना स्कोर करना है. I'll say wait. I'm really sorry. It was just an example, but you have journalized it. Don't do it. ये एक साल का एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाया है. कैन यू अंडरस्टैंड? दिस इज जस्ट फॉर 1 ईयर. बट इफ यू सी दी ओवरऑल ट्रेंड, कोई ट्रेंड ही नहीं है. यहां पे कट ऑफ 98 गई थी ओवरऑल, देन 78, देन 105, देन 122. उसके बाद देखिए कैसे गिरी है, 66, 63, 54, 67. So there is no particular number that you can claim that this would be the overall cutoff or this would be the sectional cutoff. It keeps on changing every year. There are two primary parameters which impacts your sectional and overall cutoff. First is difficulty level.
डिफिकल्टी लेवल जितना ज़्यादा होगा, कट ऑफ उतनी कम जाएगी. एंड द सेकेंड वन इज नंबर ऑफ सीट्स. नंबर ऑफ सीट्स जितनी ज़्यादा होंगी, कट ऑफ उतनी कम जाएगी. And the primary factor I would say is still the difficulty level. The number of seats would also have an impact on this. वो होगा. अगर number of seats बहुत ही variation में आ रही हैं, कभी 300 कभी 100, तो obviously number of seats would also majorly impact the cutoff. But if the number of seats are not varying much, then the difficulty level of the paper would be the primary factor which would decide that what would be your overall sectional cutoffs. So the learning that I would request you to take from here is that do observe the trends. Like here is the trend where paper is coming difficult and the overall cutoff is going low. But do not follow them 100%. I mean, do not just rely on the trends 100% and assume कि अगर इस साल ऐसा पेपर आया है तो अगले साल भी सेम आएगा. इस साल अगर ऐसा कट ऑफ है तो अगले साल भी सेम जाएगा. इतना भी उस पर ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए. ट्रेंड को ट्रस्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, बट बी रेडी टू अडेप्ट योरसेल्फ इफ द पेपर इज ऑन डिफरेंट लाइंस. ये बार बार आपको याद रखना होगा. एक और चीज जो आपको समझनी होगी रिगार्डिंग द सेक्शनल कट ऑफ्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई टोल्ड यू दैट दे ऑल्सो डिफाइन दी सेक्शनल कट ऑफ्स ईच ईयर. ठीक है. But one thing which you can observe is that when they define the sectional cutoff, it is generally kept as a particular percentage of the overall marks allotted to that section. जैसे कि 2024 में उन्होंने 25% sectional cutoff रखी है, which means that 25% of the overall marks allotted to that section would be the sectional cutoff. यहाँ से 80 में से 25% 20, 30 का 25% 7.5, 30 का 25% 7.5, 60 का 25% 15. Similarly, in 2023, the sectional cutoff was 15% of the overall marks allotted to that section. 80 का 15% 12, 30 का 15% 4.5, 30 का 15% 4.5, 60 का 15% 9. So, since 2018, you can observe this pattern clearly that all the sectional cutoffs will be a certain percentage and those would be equal. Every section would have a sectional cutoff as the same percentage as the other sections. 2022 में सारे sections की 15% थी, 2021 में 20% थी, 2019 में 25% थी. तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा. इसमें एक चीज जो हमारे लिए समझनी इंपॉर्टेंट है, इट इज कि कई बार एक सेक्शन ना टफ आ जाता है. सपोज क्वांट बहुत टफ आ गया तो मुझे लगता है कि यार क्वांट में तो कट ऑफ अब शायद 3 या 4 नंबर जाएगी, बट बाकी सेक्शंस आसान है, सो ये दे माइट डिसाइड कि नहीं बाकी सेक्शंस आसान है, सो लेट्स कीप सेक्शनल कट ऑफ एट 20%. सो अगर उन्होंने 20% डिसाइड किया और उसके बाद क्वांट चाहे टफ है, 20% ऑफ 30 वुड बिकम 6. सो यू वर थिंकिंग 3 और 4 बट इवेंचुअली इट विल गो 6. तो इस चक्कर में बिकॉज देयर इज अ फिक्स परसेंटेज, इवन टफर सेक्शंस माइट हैव अ हायर सेक्शनल कट ऑफ. दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस, बट आई थिंक इट्स गुड. इट गिव्स यू अ क्लैरिटी कि क्या परसेंटेज गई है हर सेक्शन में एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. तो अभी हमारे एस्पिरेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर एज यू सेड लो कट ऑफ्स इन सम पास्ट ईयर्स इंडिकेट टफ लेवल ऑफ फेज 1. तो मैंने जो ये चीज बताई थी कि जो ये कट ऑफ यहाँ पे लो जा रही है, दिस इज ड्यू टू दी हायर डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. पेपर मुश्किल आया है इसलिए कट ऑफ एकदम 122 से 60s और 50s में आ रही है. तो क्वेश्चन ये है कि लो कट ऑफ्स इन द पास्ट सम इयर्स इंडिकेट टफ लेवल ऑफ फेज 1. ना हाउ टू डील विद दिस, इससे हम कैसे डील करें, इसके लिए हम कैसे तैयारी करें. तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इज फेज 1 वेरी टफ. आई वुड से यस, यहाँ पे पेपर बहुत टफ आया है, चाहे क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो. Even GA section has been tough over the last 3-4 years, but I would still say there is no need to panic. There is no need to think that you need to do something special, something extra. I would say your only competition is you. आप ही अपना competition हो. Because if you see it from another angle, your total marks is 200, which are allotted for phase 1. Now, when the cutoff is going 67, what is the percentage of marks that you need to obtain? This is around 33%. Around approximately, this is around 54 out of 227%. So I would say even if the paper is tough, if we are prepared with the right strategy, have practiced a lot of questions, you have revised a lot, scoring 33% should not be that difficult if you have prepared well. Now 33% was the pass marks that we were supposed to obtain in our 10th or 12th class.
यहाँ पे तो वो मतलब टॉप 1% में आने के लिए मार्क्स हैं। तो अगर आप 33% मार्क्स भी नहीं स्कोर कर सकते टू कम इन टॉप 1%, देयर इज something wrong with your strategy also, or your intent also, or your motivation also to prepare for this exam. तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कुछ मत सोचिए, अपना एक स्ट्रैटेजी से तैयारी कीजिए, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। द प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड, द रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम। अभी इनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने पैटर्न भी बता दिया, कट ऑफ्स भी बता दिया, मुझे बता दीजिए दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, एंड व्हाट आर द बुक्स आई कैन स्टडी फॉर फेज 1, मुझे सारा बता दीजिए सर अब। तो आई वुड से वेट, वी आर कवरिंग एवरीथिंग इन अ सीरीज। तो जो आपकी बुक्स हैं हम बी फॉर बुक्स में कवर करेंगे, वी विल ऑल्सो कवर योर सिलेबस इन डी फॉर डिकोडेड सिलेबस इन दिस सीरीज। तो जब डी अल्फाबेट की बारी आएगी हम उसमें डिकोडेड सिलेबस और बी अल्फाबेट में बुक्स की बात करेंगे, वेयर आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट द डिकोडेड सिलेबस एंड बुक्स फॉर फेज 1। just be little patient and everything will be clear to you। तो ये हमने फेज 1 के पैटर्न और कट ऑफ्स की डिटेल में बात की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फेज 2 पैटर्न व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। फेज 2 का पैटर्न क्या है? इसमें आपको 3 पेपर्स होते हैं, ठीक है। पेपर 1 is economic and social issues which is also nicknamed as ESI। ये nickname आप याद रखें because in the upcoming videos I would be using these nicknames again and again। Paper 2 is English writing skills। This is different from your phase 1 English because that was objective MCQ based। This is writing skills where you would have to write your answers। This is nicknamed as descriptive English because this is descriptive paper। And paper 3 is finance and management which is nicknamed as FM। तो ये 3 पेपर्स आपके होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। All these 3 papers are of 100 marks। So total weightage of phase 2 is 300 marks। ठीक है। Now paper 1 ESI and paper 3 FM, they are 50% objective and 50% descriptive। That out of 100 marks, 50 marks of paper would be based on MCQs, another 50 marks of paper would be based on descriptive or subjective questions, whatever you may call it, जो आपको लेंदी आंसर्स लिखने होते हैं। सिमिलरली इन FM 50 marks worth of your paper would be based on MCQs, another 50 marks worth of your paper would be based on descriptive questions। ठीक है, ये दोनों पेपर्स का पैटर्न क्लियर है। ESI और FM का 50-50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आएगा, वेयर एज इन इंग्लिश राइटिंग स्किल्स दैट इज पेपर 2 100 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर वुड बी डिस्क्रिप्टिव। पूरा 100% आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये आपका ओवरऑल पैटर्न है। टू इलेबोरेट मोर ऑन दिस, अगर मैं 50% ऑब्जेक्टिव जो कि 50 मार्क्स का आ रहा है, इफ आई टॉक अबाउट दैट इन पेपर 1, you will get 30 minutes for this। To attempt this 50 marks worth of paper, you will get 30 minutes। In 30 minutes, you would be given 30 questions। Out of these 30 questions, 10 questions would be of 1 mark and 20 questions would be of 2 mark each। 10 questions of 1 mark means 10 marks। 20 questions of 2 mark each means 40 marks। So 40 plus 10 becomes 50 marks। So 30 minutes for your objective test and 90 minutes for your descriptive test, where you would be given 6 questions, you would have to do 4 questions। Out of these 4 questions, 2 questions would be of 10 marks that you would have to attempt and 2 questions would be of 15 marks। So 10 into 2 20, 2 questions, 15 into 2 30। So this 30 plus 20 becomes 50 marks in your descriptive paper of ESI। Similar pattern is there in FM। Objective paper you get 30 minutes, 30 questions, 10 questions of 1 mark and 20 questions of 2 mark each। Descriptive paper you get 90 minutes, you get 6 questions, you have to do 4 out of 6, 2 questions are of 10 mark and 2 questions are of 15 mark। Will there be any negative marking? Yes, there would be negative marking in paper 1 and paper 3, but only for the objective part। Descriptive में कोई भी negative marking नहीं है। Your paper 2 descriptive English is 100% descriptive। As I told you, in this you will be given 90 minutes। There would be 3 areas: essay writing, reading comprehension is second, and pressy writing is third, where you would be tested। So in तीनों areas को मिला के it would be 100 marks worth of your paper which you would have to attempt in 90 minutes। What would be the language? You can attempt this paper in both Hindi and English।
जो पेपर 2 है, ऑब्वियसली दिस हैज टू बी अटेम्प्टेड ओनली इन इंग्लिश बिकॉज दिस इज इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, बट पेपर 1 एंड पेपर 3 यू कैन अटेम्प्ट ऑल्सो इन हिंदी. इवन द कीबोर्ड जो आपको मिलेगा वो हिंदी में भी टाइप कर पाएगा. अब आप सोच रहे होंगे सर कीबोर्ड की कहाँ से बात आ गई. सो लेट मी हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एस्पायरिंग आरबीआई गेट बी ऑफिसर. सबसे पहला कि सर सिलेबस ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का सेम है. बिल्कुल सेम सिलेबस है. सेम ही सिलेबस में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे इन योर ईएसआई एंड एफएम पेपर. और डिटेल में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे डिकोडेड सिलेबस वाली वीडियो में जो डी से डिकोडेड सिलेबस पे बनेगी. अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहीं पे हम कीबोर्ड की गुत्थी को सुलझाएंगे. आर वी गिवन फिक्स नंबर ऑफ शीट्स टू राइट एन आंसर इन दी डिस्क्रिप्टिव पेपर, कि जो भी मुझे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने हैं वुड आई बी गिवन फिक्स नंबर ऑफ शीट्स और कैन आई आस्क फॉर एक्स्ट्रा शीट्स जैसे हम स्कूल में करते थे. तो यहाँ पे आई वुड से वेट वेट वेट, देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन एट योर एंड और मे बी आई डिडंट टेल यू एंड यू एज्यूम समथिंग. जो भी आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है ईएसआई में, इंग्लिश में, एफएम में, this paper is online. You are not supposed to write on paper with pen. You would have to write your answers using the keyboard. ठीक है, तो आप कीबोर्ड से ऑनलाइन टाइप करके अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखेंगे. और मैंने जो कीबोर्ड की बात की थी वो यही थी कि आपको हिंदी में टाइप करने वाले भी कीबोर्ड मिलेंगे. मुझे नहीं पता वो कैसे चलते हैं बिकॉज आई हैव नेवर टाइप्ड इन हिंदी, बट इन द नोटिफिकेशन इट इज रिटन दैट कीबोर्ड्स वर्किंग ऑन हिंदी scripts would also be available so that you can type on Hindi. But I think it won't be easy task if you're not used to it. ठीक है, तो इसके बारे में आप और रिसर्च कीजिए. मे विल यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑन दैट. तो सर अब क्या क्वेश्चन आ रहा है हमारे एस्पायरिंग ऑफिसर के दिमाग में. आई एम बिट डीमोटिवेटेड. फेज 1 तो लगा था हम कर लेंगे क्योंकि उसमें क्वांट था, रीजनिंग था, करंट अफेयर्स थे. बट फेज 2 में जो सब्जेक्ट्स हैं ईएसआई, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, एफएम, फाइनेंस, मैनेजमेंट, आई हैव नेवर स्टडीड देम. मुझे तो आइडिया भी नहीं है क्या है. अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि मैं क्लियर भी कर पाऊंगा या नहीं. वेट अ लिटिल. रिजल्ट्स देखे हैं आपने. आपने देखा है कैसे लोग इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं. आप उनके बारे में रिसर्च कीजिए. आई कैन टेल यू लार्ज नंबर, और मैं जब लार्ज नंबर कह रहा हूं आई डोंट वांट टू टेल यू अ पर्टिकुलर परसेंटेज, बट मैं कह सकता हूं कि 70% से भी ज़्यादा लोग जो ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं दे डू नॉट हैव एनी कमर्स और फाइनेंस बैकग्राउंड. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर्स एंड selected few are also from diverse backgrounds such as sometimes I've seen people clearing for pharma or hotel management background also. So it's not about your background. I think it would be your effort and strategy that you would be putting in to clear the exam. और एक बात समझिए, आरबीआई किस पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रही है. जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए नहीं. और डाइवर्स पूल जहां पे डिफरेंट ग्रेजुएशन फील्ड्स के बच्चे आ रहे हैं. दे हैव मेड एवरीवन एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. If they would have wanted people from commerce or finance background, they would have specifically written that you need this specialization in finance or commerce or economics. तो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए जर्नलिस्ट ग्रेजुएशन काम कर रही है. पेपर भी जर्नलिस्ट टाइप का ही सेट किया जाता है सो दैट एनीबॉडी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, इफ वी वुड हैव studied finance management economics even for a decent period of time, he or she would be able to answer the questions in the exam. तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में से निकाल दीजिए. These kind of doubts are nothing but are just killing your productivity. अब इनके दिमाग में और क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी दिखा दो फेज 2 में कैसे आते हैं और बता दो कि इन सब्जेक्ट्स को और डिटेल में कैसे पढ़ना है. अभी तो सिर्फ पैटर्न ही समझ आया है. तो कोई बात नहीं, हम बड़े करेंगे इसकी बात, बट इस वीडियो में नहीं. तो आने वाले वीडियोस में हम ई से ईएसआई और इंग्लिश के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. ऐसे हम एफ और एफएम में डिस्कस करेंगे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट को डिटेल में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इसकी तैयारी की जा सकती है. तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए. चलो, अब आप बोल रहे हैं कि फेज 2 की कट ऑफ के बारे में तो बता दो कि कितने नंबर चाहिए फेज 2 में, थोड़ा आइडिया लग जाए. तो बताएंगे उसके बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं बोलूंगा कि हम इंटरव्यू की बात कर लेते हैं सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट दी फेज 2 एंड इंटरव्यू कट ऑफ्स टुगेदर. तो जो हमारा थर्ड फेज है दैट इज अबाउट द इंटरव्यू. अब इंटरव्यू आपका होता है 75 मार्क्स का, फेज 2 होता है 300 मार्क्स का. सो इफ आई क्लब देम टुगेदर बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर मेरिट सेक्शंस जिनके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर होते हैं,
योर फाइनल मेरिट लिस्ट इज मेड आउट ऑफ 375 मार्क्स। अब आरबीआई में एक चीज आप नोट करेंगे कि इंटरव्यू का वेटेज कितना है, 75 आउट ऑफ 375, विच इज 27%। दिस इज ह्यूज। If you see other exams like UPSC, interview weightage is 15%. Even in the regulatory body domain, अगर आप सेबी या नबार्ड को डिस्कस करेंगे तो जो हमारा इंटरव्यू वेटेज है दैट इज हार्डली 15%। तो आरबीआई में इंटरव्यू का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो मार्क्स में वेरिएशन है, ठीक है, जो इंटरव्यू में कैंडिडेट्स के मार्क्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहती है। आउट ऑफ 75 सम पीपल गेट 10 एंड सम पीपल गेट 70। सो ये बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है। अगर हम इंटरव्यू को सीरियसली नहीं लेंगे, वी कैन बी एट द रिसीविंग एंड वेयर वी रिसीव ओनली 10 मार्क्स। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, हमें अच्छे से तैयारी करनी है सो दैट इफ नॉट 70 एटलीस्ट वी गेट 50 मार्क्स इन द इंटरव्यू। और इंटरव्यू की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी हो सकती है और हिंदी, हिंदी का मतलब इंग्लिश, ठीक है, जहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी के मिक्सचर में बात करते हैं। सो ये इंटरव्यू के बारे में सारा हो गया। नाउ कमिंग टू दी कट ऑफ्स। कट ऑफ दो आएंगी आपकी, एक फेज 2 की और एक इंटरव्यू की। मतलब फेज 2 की कट ऑफ वो कट ऑफ है जिसके जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आती है। सो दिस इज आउट ऑफ 300 विच इज आउट ऑफ 300 आफ्टर यू गिव फेज 2। सो यहाँ पे ओवर द इयर्स आप देख सकते हैं कट ऑफ, एंड इट इज वेरिंग अ लॉट। हाईएस्ट देखेंगे तो आप 201 गई है, लोएस्ट देखेंगे तो 169 गई है। सो लाइक फेज 1 कट ऑफ्स दे आर आल्सो वेरिंग अ लॉट। और जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ मींस जो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन लिस्ट की कट ऑफ आती है, दिस इज आउट ऑफ 375, ठीक है, क्योंकि 300 आपका फेज 2 का हो गया और 75 आपका इंटरव्यू का मिला के फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है। सो दिस इज आउट ऑफ 300 आफ्टर यू गिव फेज 2 एंड दिस इज आउट ऑफ 375 आफ्टर यू गिव द इंटरव्यू। Till 2019 this is not out of 375, this is out of 350 because तब इंटरव्यू की वेटेज 50 मार्क्स होती थी, बट अब इसको बढ़ा के 75 मार्क्स कर दिया गया है। Here also you will see there is lot of variation। यहाँ पे 350 में से ही कट ऑफ 248 गया है, यहाँ पे 375 है बट फिर भी कट ऑफ 229 गया है। सो देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन, बट द पॉइंट आई वांट टू टेल यू, as I told you in phase 1, do not just observe the trend, उनको देखो लेकिन blindly follow मत करो। There can be a variation and it will be there each year। फेज 2 या इंटरव्यू के जो कट ऑफ्स हैं वो भी वेरी करेंगे on the difficulty level of the paper and the number of seats each year। And one more thing which is very important for you to understand, काफी बार क्या होता है ना, जैसे 2023 में कट ऑफ 169 गई थी फॉर फेज 2, दैट इज टू गेट इन इंटरव्यू कॉल। अब किसी के 170 आए हैं ना तो वो बहुत खुश है कि मुझे तो इंटरव्यू कॉल आ गया है, बट ओवरऑल कट ऑफ क्या गई है, 229। इट मींस इफ समबडी इज गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल हियर बाय स्कोरिंग 170, उसको अब फाइनल लिस्ट में आने के लिए 60 मार्क्स और चाहिए। दैट मीन्स आउट ऑफ 75 60 मार्क्स नीड टू बी स्कोर्ड इन द इंटरव्यू। दैट इज पॉसिबल बट दैट इज वेरी रेयर, यू हैव टू बी एक्सेप्शनल फॉर दैट। ऐसे यहाँ पे आपको 172 पे चलो इंटरव्यू कॉल आ गई, बट ओवरऑल स्कोर कितना है, 234, मींस 62 मार्क्स मोर आउट ऑफ 75 इन द इंटरव्यू। सो ये जो मार्क्स है ना इंटरव्यू कॉल के लिए, आपको ये नहीं लाने हैं, इससे 10% ज्यादा ही लाने हैं, सो दैट योर डिपेंडेंसी ऑन द इंटरव्यू कैन बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे अगर मेरे 169 थे, सपोज आई स्कोर 10% मोर, आई स्कोर 190, तो मुझे अब इंटरव्यू में कितने लाने हैं, 39 to 40, विच इज फेयरली इजी। एंड आई वुड से देयर इज अराउंड 80% प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 35 to 40 बिकॉज दैट्स एन एवरेज मार्क्स। सो हमें फेज 2 में अच्छा करना है, जस्ट ऐसा नहीं है कि वी गेट आवर फुट इन द डोर कि हम अंदर आ गए हैं लेकिन जाना हमने बाहर ही है क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ हाई जाने वाला है। तो इतनी मेहनत करो कि फेज 2 की कट ऑफ से 10% या 15% ही ज्यादा ले आओ, उतना ही चांस बढ़ जाएगा और इंटरव्यू विल नॉट मैटर दैट मच। तो हमने पूरा फेज 2 और इंटरव्यू का डिस्कस कर लिया, पैटर्न और कट ऑफ्स। अब इनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर इंटरव्यू का आपने डर बिठा दिया है कि 10-10 नंबर भी आते हैं लोगों के आउट ऑफ 75, कुछ बता दो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो डोंट वरी, वी विल डिस्कस दैट इन आवर अपकमिंग वीडियोस आई फॉर इंटरव्यू, उसमें पूरा इंटरव्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। तो हमने ए से ऑल अबाउट आरबीआई ग्रेड बी खत्म कर लिया है इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पैटर्न एंड कट ऑफ्स हमारे हो गए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बी फॉर बुक्स, ठीक है। तो इस वीडियो का वेट कीजिए,
And if you want to see the full playlist, ये playlist है हमारी, and the link for this playlist is given in the description of this video. Thank you. Have a nice day. Bye bye.